Hello all. Today we will move to another important and the latest DNA sequencing method, and which is also referred as third generation sequencing. Okay? The sequencing is called nanopore sequencing. Of course, as the name suggests, there is a nanopore, and depending on the nanopore, the complete sequencing is based. Okay, but the most important fact of this sequencing is this is having quite low cost, okay, high mobility, because the speed of this sequencing is much higher than any other DNA sequencing, and it's also real time, so you will get a quick result immediately. As your DNA will be processed here, immediately you will get the sequence. Also, here no DNA polymerase or any other enzyme which is required for DNA synthesis is essential. Okay, so we don't require any DNA synthesis enzyme like DNA polymerase or anything, and that's why the sequencing is quite fast. Okay, now let's see what actually this DNA sequencing is having. Okay, now in this DNA sequencing method, we are going to form a membrane of this type. You can see there is a beaker or an apparatus, okay, and in this there is a membrane is formed. It might be a biological membrane or biological type of membrane, or it might be a completely synthetic membrane also. And in this membrane you can see there is a pore, and this pore is generally a nanopore, okay, quite small. Its diameter is in nanometers, okay, and this complete apparatus is filled with a solution of electrolyte. Throughout, on both the sides, there is a solution of electrolyte. So actually this complete apparatus is divided into two compartments. Okay, so अगर हमारे पास कोई बीकर है या कोई भी जार है, इसको हम एग्जैक्टली सेंटर से हमने एक मेम्ब्रेन डाल दी है. ऊपर भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और नीचे भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो दोनों जगह आयंस है, करेक्ट, बट this complete compartment is divided into two parts by the membrane, and the membrane is having a nanopore. Okay, such many pores might be there. Let it be very clear. Okay, I have shown only a single pore. Okay, and now इस single nanopore के through हम लोग इस single stranded DNA को पास कर रहे हैं. Okay, और अब इस single stranded DNA जब इस nanopore से पास होगा, तो इस दरम्यान वो जो भी इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस लाने वाला है, उसके बेसिस पे यहां पे पूरा सीक्वेंसिंग होने वाला है. मींस एज योर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विल पास थ्रू द नैनोपोर, व्हाटएवर इंटरप्शन इन द इलेक्ट्रिक करंट इट विल फॉर्म, ऑन दैट बेसिस द सीक्वेंसिंग इज परफॉर्म. ओके, नाउ concentrate well. This is your single stranded DNA, and you can see on upper side of the membrane there is a negative electrode. This is the electric current supply, and this is the negative electrode. Why? This is the positive electrode which is present on the lower side of the membrane. So suppose this is the membrane. There is one electrode, okay, which is having negative electrode, and other electrode which is having positive electrode. Okay, तो negative electrode is ये कहाँ है, ऊपर है, और positive electrode नीचे है, करेक्ट, और यहाँ पे नैनोपोर है. एंड इस मेम्ब्रेन के ऊपर के सॉल्यूशन में डीएनए इज प्रेजेंट, नीचे भी सॉल्यूशन है और ऊपर भी सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, और यहां डीएनए, करेक्ट. जैसे हम लोग करंट ऑन करेंगे, व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली करंट ऑन करते ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इस नैनोपोर के तरफ मूव होगा ब्राउनियन मूवमेंट के थ्रू. रीजन, डीएनए कंटेन्स फॉस्फेट. फॉस्फेट है, इसका मतलब डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, करेक्ट, और नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इस मेम्ब्रेन की तरफ अप्रोच करेगा, और इस मेम्ब्रेन के इस नैनोपोर में से वो भी अपने आप को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लेके जाएगा. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहां है, मेम्ब्रेन के नीचे. सो दिस इज द मेम्ब्रेन,
नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, यहां पे दोनों मैंने एक ही साइड में दिखाया, बट एक्चुअली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये नीचे है। ओके, क्योंकि यहां पे दिखाई नहीं देता, इसलिए आई हैव शोन इट लाइक दिस। ओके, आई कैन मेक इट डॉटेड समथिंग लाइक दिस as it is present below this membrane. Okay, and now पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इस नैनोपोर में से नीचे की तरफ जाएगा। करेक्ट। एंड एडेनिन का ज्योमेट्री कैसा है, साइज कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो एडेनिन जब इस नैनोपोर में से पास होगा तो कितनी जगह एडेनिन इज गोइंग टू ऑक्यूपाई। ओके, वो कितनी जगह, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, ये साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया हुआ है। थायमिन, थायमिन पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन मींस सिंगल रिंग, इसलिए थायमिन का साइज छोटा है, एडेनिन का थोड़ा सा बड़ा है, ग्वानिन का क्लियर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। करेक्ट। साइटोसिन इज द स्मॉलेस्ट वन एंड दैट्स व्हाई अगर इस नैनोपोर में से साइटोसिन गया तो वो इस इलेक्ट्रिक करंट को मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला है। बिकॉज अगर एक बीकर है समथिंग लाइक दिस एंड यहां एक इलेक्ट्रोड है विच इज निगेटिव, यहां एक इलेक्ट्रोड है विच इज पॉजिटिव। करेक्ट। एंड यहां पे एक मेम्ब्रेन है जैसे हमने यहां दिखाई है, और इस मेम्ब्रेन में क्या है, नैनोपोर, और पूरा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो वी आर वेल फैमिलियर, एज सून एज वी विल ऑन द करंट, करंट ऑन होते ही व्हाट विल हैपन, अरे सारे जितने भी निगेटिव आयंस होंगे ना, करेक्ट, वो अट्रैक्ट होंगे थ्रू दिस नैनोपोर, ऊपर के निगेटिव आयंस इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। करेक्ट। एंड नीचे के निगेटिव आयंस भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जाएंगे ऑफ कोर्स, और जो पॉजिटिव आयंस होंगे नीचे के या ऊपर के, वो किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस निगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू दिस नैनोपोर। तो पॉजिटिव आयंस नैनोपोर के थ्रू ऊपर जाएंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, निगेटिव आयंस नैनोपोर के थ्रू नीचे के इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे। This is what is, this is the conduction of electric current in an electrolyte solution or in a liquid solution. Correct? And that's why this type of current can also be called electrophoresis. What is electrophoresis? Nothing but migration of ions towards oppositely charged electrode. Any substance which is neutral cannot show any movement in electric current. Correct? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई मूव होगा तो कौन होगा, चार्ज पार्टिकल्स, निगेटिव आयंस जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयंस जाएंगे टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक। अब हमने क्या किया, ऊपर में हमने एक डीएनए रखा हुआ है। करेक्ट। और ऑफ कोर्स, और जब निगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे एक नैनोपोर के थ्रू, तो एक बहुत बड़ा आयंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क उस नैनोपोर के थ्रू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस बहुत सारे निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे। करेक्ट। तो आयंस का बहुत बड़ा एक फ्लो शुरू है इस नैनोपोर के थ्रू। करेक्ट। और वो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। बट जैसे आपका डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, एंड दैट्स व्हाई वो किसके तरफ जाएगा, वो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जैसे आपका डीएनए आया ब्राउनियन मूवमेंट के थ्रू और यहां इस नैनोपोर में से जैसे उसने जाना शुरू कर दिया, जैसे ही गया वो इमीडिएटली इट विल फॉर्म सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ आयंस। ये जो अब तक आयंस एकदम फ्लो हो रहे थे, फ्री फ्लो हो रहे थे पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ। ओके, इन फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा क्योंकि उसमें से, उस नैनोपोर में से कौन पास होने वाला, उस नैनोपोर में से पास होने वाला है आपका डीएनए। और जैसे डीएनए इसमें से पास होगा ऑब्स्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाएंगे करंट में। अभी भी मैंने बताया ये ऑब्स्ट्रक्शन किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका एडेनिन जा रहा है, ग्वानिन जा रहा है, थायमिन जा रहा है कि साइटोसिन जा रहा है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन ये सब पास करके साइंटिस्ट लोगों ने देख लिया है कि कौन ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है ग्वानिन, फिर एडेनिन, फिर थायमिन, और सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन इस करंट में प्रोड्यूस करता है साइटोसिन। उसके बेसिस पे यहां से कौन पास हो रहा है, दैट इज नोटेड। ओके, नाउ यू कैन सी हियर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें से जाने वाला है। करेक्ट। और इस जो करंट था यहां पे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, ओके, इसके कांटेक्ट में ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, जो अगर डीएनए नहीं पास हो रहा है तो नॉर्मल करंट फ्लो होगा। करेक्ट।
and it will show a single line like this. But जैसे डीएनए यहां से गया, डीएनए जाते ही ऑब्स्ट्रक्शंस आना शुरू हो गया आयंस के फ्लो में, करेक्ट। और आपको दिख रहा है अगर सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है तो ए की वजह से ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, और ये जो करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो है। फॉलोड बाय अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड थायमिन है तो थायमिन की वजह से आपको दिख रहा है कम ऑब्स्ट्रक्शन है क्योंकि थायमिन सिंगल रिंग है, एडेनिन डबल रिंग है। ग्वानिन की वजह से आपको दिख रहा है ज्यादा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है क्योंकि ग्वानिन का वॉल्यूम एडेनिन से थोड़ा सा बड़ा है। साइटोसिन की वजह से आपको दिख रहा है कम ऑब्स्ट्रक्शन है, और दो साइटोसिन अगर कंटिन्यू होंगे तो सीसी। तो जो सीक्वेंस है डीएनए सीक्वेंस, तो इमीडिएटली जैसे जैसे डीएनए यहां से पास होगा इमीडिएटली दैट सीक्वेंस विल बी देयर, ए टी जी सी सी जी टी लाइक दिस, okay, and that is recorded here in the computer software, correct? Now this membrane can be made up of synthetic material जिसको solid state कहा जाता है। solid state का मतलब एक completely synthetic material आपने बनाया और उससे membrane बनाई है। ये जो nanopores है, it might be metallic one, ये metal की membrane भी हो सकती है, और इन metal में जो nanopores है ये भी metal से ही बने होंगे, okay? But ये biological भी किया जा सकता है, मतलब membrane सिंथेटिक की जगह बायोलॉजिकल बनाई जा सकती है, और उसमें जो पोर्स है उन पोर के जगह पे कुछ प्रोटीन्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा है यहां पे भी हमने एक मेम्ब्रेन दिखाई है, ओके, और यहां हमने इस मेम्ब्रेन में ये जो पोर बनाया है ये पोर है, इस पोर के जगह हम लोगों ने कुछ प्रोटीन्स को ही यूज किया, ओके। हमारे पास कुछ अनवाइंडिंग एंजाइम्स है जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और आपको दिख रहा है हमने सिंपली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डाल दिया था, ओके, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। यहां ऊपर भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, ओके, और नीचे भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, और ये पोर है नैनोपोर सेम, ये जो यहां पे प्रोटीन्स ने बनाया है इसको प्रोटीन पोर कहा गया है क्योंकि हमने कुछ प्रोटीन्स को वहां पे फिक्स कर दिया है इन अ मेम्ब्रेन, ओके। और ये मेम्ब्रेन है और ये प्रोटीन पोर है, और इसके ऊपर है अनवाइंडिंग एंजाइम, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने सिंपली रिलीज कर दिए। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब यहां जाने की कोशिश करेगा तो नैनोपोर में जगह इतनी है कि एक वक्त एक ही स्ट्रैंड जा पाएगा, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन पास थ्रू इट, एंड रिजल्ट ऑफ दिस इज ये अनवाइंडिंग एंजाइम जैसे जैसे इस डीएनए को अनवाइंड करेगा उसमें से एक ही स्ट्रैंड पास होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और आपको दिख रहा है ए अगर इस नैनोपोर में से गया तो ये जो आयंस ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर जा रहे थे, इन आयंस के जो आयंस की जो मोशन है या मूवमेंट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, और आपको दिख रहा है ए की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आया, वो नोट किया गया करंट में। फिर कौन जाएगा, टी जाएगा इसके थ्रू, टी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर जी, जी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, जी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है। फिर सी, सी 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 विल बी नोटेड क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन एकदम लीस्ट है। फिर जी, फिर से बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन, टी ऑब्स्ट्रक्शन। इन दिस वे इट इज रिकॉर्डेड। तो ये बायोलॉजिकल भी किया जा सकता है और सिंथेटिक भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ज्यादा प्रेफरेबल सिंथेटिक है क्योंकि सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन आप कई बार और यूज कर सकते हो, एंड इट्स a bit more rough and tough, okay, as compared to the biological one, and that's why this type of instrumentation is. Now sequencing biopolymer, this method nanopore sequencing is used to sequence biopolymer, means not only DNA और RNA, DNA और RNA के साथ साथ आप प्रोटीन के भी सीक्वेंसिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो साइंटिस्ट लोगों ने एलेनिन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, थ्रेओनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, सेरीन, ये सारे अमीनो एसिड्स भी इसमें से पास करके देखिए, ओके। और उसके बाद वो कितने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वो भी नोट किया है, एंड इन दिस वे अगर मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी है उसको भी मैं रिलीज कर देता हूं। द ओनली थिंग इज दैट पॉलीपेप्टाइड चेन शुड बी मेड नेगेटिव, ओके, एंड दिस नेगेटिवली चार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन विल पास थ्रू दिस नैनोपोर। डेफिनेटली जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे आयंस के फ्लो में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, मतलब इसको उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। बट स्पेशली ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं विद डीएनए और आरएनए। देन नो नीड ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि इसके पहले के मेथड्स में हमने देखा, हमने फ्लोरोसेंस लेबल किया था कंपाउंड को या डीएनए को, और उस फ्लोरोसेंस कौन से कलर का मिला उसके बेसिस पे भी हमने कई डीएनए सीक्वेंसिंग किए हैं। यहां पे पहली चीज तो यह है आपको कोई भी लेबल करने की जरूरत नहीं, नो रेडियो लेवल और नो फ्लोरोसेंस लेवल, इसकी जरूरत नहीं है। ऑल्सो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन की जरूरत नहीं, एक सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट अगर पास हो रहा है तो दैट मच इज ऑल्सो सफिशिएंट।
अभी मैंने बताया लो कॉस्ट, कॉस्ट कम है क्योंकि आपको डीएनए पॉलीमरेज और ये सब सिंथेसिस किसी नए स्ट्रैंड की करने की जरूरत नहीं। हाई मोबिलिटी ऑफ कोर्स बिकॉज एज द डीएनए विल पास sequencing is ready, so real time. Either natural, just now we have discussed biological, or solid state which is also called synthetic membrane can be formed with nanopore. Nanopore तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के थ्रू डीएनए जाने वाला है। Electrolyte solution on both the sides of the membrane which we have just discussed. Electrolyte solution. Area near the membrane is called capture region. So ये जो membrane के पास में जो region इसको capture region कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए इस जगह के तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां आने के बाद उसको कैप्चर किया जाएगा। ओके, क्यों कैप्चर किया जाएगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। मतलब इलेक्ट्रोड्स कहां होने चाहिए? बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास। तो ये अगर मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने अभी बताया, ये अगर मेम्ब्रेन है तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास होने चाहिए, दूर रख के नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव्स आयंस थ्रू द नैनोपोर, जिसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा है। मूवमेंट ऑफ आयंस रिकॉर्डेड एज स्टेडी आयोनिक करंट और स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए स्टेडी, और अब स्टेडी रहेगा, लेकिन जैसे डीएनए गया इट विल फॉर्म इंटरफेरेंस। डीएनए स्टार्ट्स ट्रैवलिंग थ्रू द नैनोपोर टुवर्ड्स एनोड। क्यों? क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड दैट्स व्हाई डीएनए विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। करेक्ट? लेकिन जब वो ट्रैवल करेगा तो कौन कौन के इफेक्ट की वजह से करेंगे? नो डाउट इलेक्ट्रोफोरेटिक, ये मूवमेंट तो होगी ही। माइग्रेशन ऑफ आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट तो है ही, बट इलेक्ट्रोऑस्मोटिक मूवमेंट भी है। ऑस्मोसिस, करेक्ट, माइग्रेशन ऑफ आयंस और माइग्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, वो भी होगा। थर्मोफोरेटिक, ये भी फोर्स एक्ट करेगा। थर्मोफोरेटिक, ओके, थिंक ऑन इट। थर्मोफोरेटिक मूवमेंट और फोर्स विल आल्सो एक्ट ऑन इट, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्ट्स आयन फ्लो। कौन सा वॉल्यूम? अरे जो वॉल्यूम का मॉलिक्यूल उस नैनोपोर में से जाएगा वो उतना वॉल्यूम एडेनिन है कि ग्वानिन है कि साइटोसिन है कि थायमिन है। जैसे मैंने बताया ग्वानिन का वॉल्यूम सबसे बड़ा है, तो वो उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्ट्स आयन फ्लो थ्रू द नैनोपोर एंड देयरफॉर ड्रॉप इन करंट। एंड ये ड्रॉप इन करंट कितना हो रहा है ये रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर ये नहीं होते, एटीजीसी यहां से नहीं जाता, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, बिल्कुल वैसी। ड्रॉप इन करंट एंड दैट इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री, साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। ज्योमेट्री किसकी? एडेनिन की, ग्वानिन की, थायमिन की या साइटोसिन की। साइज कितना उसका साइज है, कितना वॉल्यूम लेने वाला है, और केमिकल कॉम्पोजिशन, इसके बेसिस पे ये ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला है। ओके, मैंने भी बताया नैनोपोर, जैसे हमने बताया कि प्रोटीन्स को भी यूज किया जा सकता है, और इसमें पोरिन नाम का एक प्रोटीन है विच फॉर्म पोर इन मेम्ब्रेन, और वो पोरिन भी यूज किया जा सकता है या अल्फा हीमोलाइसिन भी यूज किया जा सकता है। ओके, इनको यूज किया गया, और भी कई प्रोटीन्स को ट्राई किया गया है। ओके, कई बैक्टीरियल प्रोटीन्स भी ट्राई किए गए हैं एंड दे आर सिंपली केप्ट इन द मेम्ब्रेन जस्ट लाइक अ नैनोपोर, यूज्ड एज अ नैनोपोर। और मेटल और अलाय, इसका भी सॉलिड स्टेट में, ठीक है, उसको भी यूज किया जा सकता है। करेक्ट? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द nanopore sequencing. Now, right from the basic, I have isolated DNA of any organism. Suppose कोई plant है, I have isolated its DNA. I will fragment the DNA, and all these DNA fragments. Consider now कि ऐसी बहुत बड़ी मेम्ब्रेन है जिसमें कई नैनोपोर्स है, और हर नैनोपोर का अपना एक अलग इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। मतलब हर नैनोपोर को जो अटैच्ड इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग अलग है। और अब ये डीएनए फ्रेगमेंट हमने छोड़ दिए, तो ये एक एक डीएनए अगर एक पोर के थ्रू जाएंगे तो हर पोर का रिकॉर्डिंग किया जाएगा, और ऑलमोस्ट वो पूरा जीनोम एक साथ सीक्वेंस किया जा सकता है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मस्ट इंडिकेट हियर, आइदर आप डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स किए हैं, किसी जीनोम को जिसको हमने आइसोलेट किया उसके फ्रेगमेंट्स किए, और जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग इसको इस टाइप की एक मेम्ब्रेन के जिसमें कई नैनोपोर से उसमें रिलीज कर दिया, करेक्ट, और हर नैनोपोर के थ्रू एक एक डीएनए फ्रेगमेंट जाएगा। अगर आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के भी फ्रेगमेंट्स रिलीज कर दोगे तो यू मस्ट हैव दिस अनवाइंडिंग एंजाइम हियर, बिकॉज एट अ टाइम ओनली वन डीएनए fragment can enter,
दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसके थ्रू नहीं जा सकते, तो आपको डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम की जरूरत है. सो ओनली वन डीएनए विल बी पास्ड. करेक्ट? मतलब आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स भी वहां पे रिलीज कर सकते हो. और अदर देन दैट आप पहले ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अल्कलाइन सॉल्यूशन में रख के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दो. करेक्ट? और बाद में जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इनको रिलीज कर सकते हो, तो डायरेक्टली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही जाएगी. ओके? तो आइदर आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अनवाइंडिंग एंजाइम इज एसेंशियल. ओके? जो अनवाइंडिंग एंजाइम कहां है? नैनोपोर के एग्जैक्टली ऊपर. और यू कैन यूज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उन्हीं का यूज कीजिए फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग. ओके? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से भी किया जा सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से भी किया जा सकता है. ओके? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? नैनोपोर डीएनए सीक्वेंसिंग, द थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग. थैंक यू.